So, hello and welcome back class into another video of your science chapter. So, we are starting a new chapter in today's class, and our new chapter for class 8th science will be microorganism. So, the name of the chapter is microorganisms. Okay, first of all I am starting from the basic, then we will deal one by one the concepts which we have to discuss in this chapter. Okay, so first of all you must know what is microorganism. The full name of the chapter is microorganism, friend and foe. So what do you mean by friend and foe? The name of the chapter is trying to say that microorganisms are our friends as well as our foe. It means microorganism हमारे फ्रेंड्स भी हैं, साथ साथ हमारे दुश्मन भी हैं, बिकॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, ओके, एंड मैनी मोर थिंग्स. सिमिलरली माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन भी है, यानी कि फो भी है, ओके, बिकॉज दे काउजेज अ लॉट ऑफ डिजीजेस. उनके कारण काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं. सो दैट्स द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्राइंग टू इंडिकेट. Coming forward to microorganism, first of all you must know what is microorganism. Microorganism कहते किसे? Okay, so let's begin from our first point of the chapter, which is what is microorganism. So when it comes to microorganism, simply you can understand microorganism is nothing but living bodies or living organisms. So these are living organisms which cannot be seen by our naked eyes. हम इसे खुली आंखों से, और you can say हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते. तो इन्हें देखने के लिए we have to use microscopes. That's why these are called microorganisms. So let's write the definition. These are living things which can't be seen by our naked eyes. To see these, we have to use microscopes. Okay, so definition काफ़ी सिंपल सा है, very simple. These are living things which can't be seen by our naked eyes. हमारे naked eye से इसे देखना पॉसिबल नहीं है. To see this we have to use microscopes, and इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत है. तो ये था डेफिनेशन microorganism. This was the definition of microorganism. We have to study one more thing before starting the chapter, which is
microbiology. So what do you mean by microbiology? माइक्रोबायोलॉजी से आप क्या समझते हो? सो सिंपली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये साइंस का वो ब्रांच है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सिर्फ डील करता है, यानी कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, स्टडी करके देता है. सो राइट द डेफिनेशन. इट इज a branch of science that deals with study of microorganisms. तो ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं. सो दिस वाज द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में है. सो नोट दिस थिंग, देन वी विल मूव फॉरवर्ड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So, we have discussed the definition of microorganism. Now, next part which we have to discuss is types of microorganism, or you can say classification of microorganism. कितने कितने अलग अलग तरह के microorganism हो सकते हैं. So, write the next point. Classification of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशंस, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस यानी कि उनका अलग अलग टाइप्स बोल सकते हैं. सो राइट द पॉइंट. Microorganisms are classified into 5 major groups. माइक्रोऑर्गेनिज्म को 5 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, उन्हें 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है. ओके, सो व्हाट आर दोज 5 मेजर ग्रुप्स? वो 5 मेजर ग्रुप्स हैं क्या? सो राइट इट. द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. नंबर 2 इज वायरस. नंबर 3 is algae. Number 4 is fungi, and number 5 is protozoa. So these are 5 classifications, or you can say 5 categories of microorganisms. Note this thing. Then now we have to deal one by one about all the classifications. Note this one. So first of all, let's discuss about bacteria, because that is the first classification. So let's discuss about bacteria. What is bacteria? What type of microorganism is this? So write the points I am mentioning about bacteria. We will deal these things point wise. So first point about bacteria. These are
unicellular organisms. Number 2, they are found everywhere. And when it comes to everywhere, then it means everywhere. Air, land, water, soil, animals, plants, etc. So let me explain these 2 points. माइक्रोऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. सो यूनिसेलुलर मीन्स व्हाट? डू यू अंडरस्टैंड अबाउट, डू यू अंडरस्टैंड द टर्म यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर मीन्स their body is made up of only one cell. Unicellular means their body is made up of only one cell. So when it is unicellular, you can understand single cell organisms. So unicellular means ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट वाज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल से बने होते हैं. सेकेंड, दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो हवा हो, ज़मीन हो, मिट्टी हो, पहाड़ हो, कुछ भी, एवरीवेयर. एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, यहाँ तक कि एनिमल्स के बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के ऊपर, एवरीवेयर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट, they move with hair-like legs called flagella. ये अपना मूवमेंट जब करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह अगर जाएंगे, तो ये फ्लैगेला की हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं. ओके, फ्लैगेला क्या होता है? उनके बॉडीज़ के चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड वो उसी की हेल्प से मूव करते हैं. यू कैन से रेंगते हैं. ओके, नाउ दिस वाज द सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, they can make their own food. ये अपना खाना खुद बना सकते हैं and also can consume from environment. ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, दैट्स गुड, बट साथ साथ ये इन्वायरमेंट से भी खाना कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से भी खाना ले सकते हैं. सपोज़ कोई एनिमल या कोई भी चीज़ अगर डेड हो जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उसे खाना शुरू कर देते हैं एंड एक टाइम के बाद वो कम्प्लीटली सड़ जाता है. सड़ जाना मीन्स बैक्टीरिया ने उसे कम्प्लीटली खा लिया है एंड वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. सो बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी कोई चीज़ डेड हो जाती है उसे वापस इन्वायरमेंट में मिलाने में, उसे डिकम्पोज करने में बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है. नॉट ओनली बैक्टीरिया, ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो नोट दिस थिंग. दिस इज द 4 point. नाउ लेट मी डिस्कस one more point about bacteria. They need moisture and
moderate temperature to survive and grow. Okay, so this was the next point. They need moisture and moderate temperature to survive and grow. इन्हें सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए इन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा, साथ साथ इन्हें मॉडरेट टेम्परेचर भी चाहिए होता है. अगर टेम्परेचर मॉडरेट नहीं हुआ, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया, देन बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर धूप ज़्यादा है तो सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं अगर धूप में वो प्रेजेंट होंगे तो. सो इन्हें मॉडरेट टेम्परेचर भी चाहिए. सो दिस वाज द पॉइंट. नोट दिस थिंग. हम बैक्टीरिया के बारे में 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, they do reproduction. They do reproduction through binary fusion. If you don't understand about binary fusion, you can see in the diagram. Binary fusion is a process in which, suppose ये एक बैक्टीरिया है, ओके, तो बैक्टीरिया कुछ इस तरह का होगा. इसके एंड्स पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये मूवमेंट करते हैं. सपोज ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जैसे जैसे बड़ा होता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ये टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, एंड एक टाइम पे ये न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूट जाता है. दिस न्यूक्लियस विल ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूक्लियस देयर बॉडी ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, एंड दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन. तो एक बैक्टीरिया अब 2 नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया. सो नाउ 2 न्यू बैक्टीरियाज आर हियर. सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन. आई होप यू अंडरस्टूड. Got it? So from this here to here and then here to here, this is the process of binary fusion. Note this thing. Coming forward to next point, we have written about reproduction, how it reproduce. Now some examples of bacteria. So write Lactobacillus, and one more name is Rhizobium, etc. So these are some names of bacteria which you can write down as example. Lactobacillus, you can say Lactobacillus and Rhizobium. So these are 2 bacteria. Now in last point I will deal about the diseases caused by bacteria. So last point is diseases caused by bacteria. So what are the diseases which are caused by bacteria? So number 1 is typhoid. Okay, so first disease is typhoid, second one is tuberculosis, and number 3 is cholera. So these are some diseases caused by bacteria. You must remember this: typhoid, tuberculosis and cholera. These diseases are caused by bacteria. Note this thing:
we have discussed everything about bacteria. Now we will move forward towards virus. Now, the second microorganism which we have to discuss is virus. So when it comes to virus, let me tell you, virus is very smaller in size as compared to bacteria. Okay, so normal माइक्रोस्कोप से भी उसे देखना बहुत मुश्किल होता है. So for obtaining virus को देखने के लिए we use electron microscope. Okay, so write some points about virus also. These are even more smaller than बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं and can only be seen through electron microscope. एंड इसे देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही हम यूज़ कर सकते हैं. किसी और माइक्रोस्कोप से इसे देखना पॉसिबल नहीं है. ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. दीज आर parasites. Okay, these are parasites which behaves as non-living organisms but once they enter a living body, they become active and starts reproducing. So let me explain this point. These are parasites which behaves as non-living organism. वायरस जो होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा जब तक वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर ना करे. कब तक? जब तक वो किसी लिविंग एनिमल या लिविंग ह्यूमंस किसी के अंदर अगर इंटर ना करे तब तक ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है. बट वंस दे इंटर लिविंग बॉडी, जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी में इंटर करेगा दे बिकम एक्टिव, वो एक्टिव हो जाते हैं एंड स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, और रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. सो जब तक वो बाहर हैं तब तक नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेंगे. जैसे ही वो किसी लिविंग एनिमल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटर कर जाएंगे वो एक्टिव हो जाते हैं एंड रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं. So that was the second point. So one more point about bacteria is diseases. Diseases caused by bacteria. तो sorry, not bacteria, no, virus. तो वायरस के कारण क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? सो राइट, पोलियो, नेक्स्ट वन इज एड्स, नेक्स्ट वन इज स्वाइन फ्लू,
and one more is कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड मीन्स जैसे कि कभी आपको जाड़ा बुखार होता है, दैट इज़ कॉमन कोल्ड. तो ये सब वायरस के कारण ही होता है. एंड मेनी मोर डिजीजेज आर देयर, बट यू शुड नो 3 or 4 names. So polio, AIDS, swine flu and common cold, these are diseases which are caused by bacteria, virus. So we have discussed about virus also. In next class I will discuss about other microorganisms. Till then, thank you class.